الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محترم حاضرین، آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم تاریخ اسلام کے اس دردناک حادثے کا ذکر کریں گے کہ جس کے اندر وفا اور بے وفائی، وعدہ اور عہد شکنی، غداری اور بے ایمانی، بے غیرتی، تمام قسم کے مظاہر آپ کے سامنے کھل کر کے آئیں گے۔ یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ جس کو سننے سے کانے بھی تھرا اٹھتے ہیں، زبانیں بھی لرزتی ہیں، اور انسان کا روح، انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو کون نہیں جانتا ہے؟ آپ امام الانبیاء، سید ولد آدم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں، فاتح خیبر علی حیدر کے بیٹے ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے کاندھے پر بٹھاتے تھے، کبھی بوسہ لیتے تھے، کبھی سینے سے لگاتے تھے، بہت پیار کیا کرتے تھے، بہت شفقت اور محبت کا احترام کیا کرتے تھے۔ لیکن اتنی عظیم ہستی ہونے کے باوجود بھی، جنت کا سردار ہونے جیسا شرف حاصل ہونے کے باوجود بھی، میدان کربلا میں باغیوں نے، مجرموں نے، نافرمانوں نے، اللہ کے دشمنوں نے آپ کو تڑپا ڈالا۔ تمام قسم کی منت اور سماجت کے باوجود بھی انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے اہل بیت کو تڑپا تڑپا کر کے آپ کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا۔ جب یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو ہر دل اور دماغ کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس کے مجرم کون ہیں؟ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ کون ہے جو اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں؟ جب کسی بھی دل اور دماغ کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے تو تاریخ کو جاننے والا، دین اسلام کو جاننے والا ہر ایک شخص یہ پکار کر کہتا ہے کہ اس کے ذمہ دار کوفی ہیں، اس کے ذمہ دار کوفی ہیں، اس کے ذمہ دار کوفی ہیں، اس کے ذمہ دار کوفہ کے شیعہ ہیں۔ اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ لے کر کے جو بیٹھا ہوں، اپنی طرف سے میں شاید چند کلمات کہوں گا۔ میں جو قاتل ہیں اور قتل کرنے کے بعد جو آج ماتم کر رہے ہیں، سینہ کو بھی کر رہے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان سیاہ لباس والوں کے سینے کے اندر جو چھپا ہوا کالا دل ہے، جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا کے اندر تڑپا تڑپا کر کے شہید کر دیا تھا، ان کا رونا، ان کا دھونا، ان کا اپنے آپ کو زنجیر زنی کرنا، اپنے جسم کو لہو لہان کرنا، اپنے گالوں کو پیٹنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، یہ آپ کے خون کا بدلہ نہیں ہے، نہ ہی آپ کے خون کا کفارہ ہے، بلکہ ان ظالموں نے ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں پر اللہ نے اس سزا کو مسلط کر دیا ہے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں، ان کے اپنے گھر کی گواہی میں آپ کو دوں گا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بددعا دی تھی اور ان کی بددعا کے شکار ہو گئے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ میدان کربلا رونما کیوں ہوا؟ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ سبائی ابن سبا کی یہ اولادیں، اور اسی طرح سے جن کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے لیے بغض تھا، نفرت تھی، عداوت تھی، دشمنی تھی، ان لوگوں نے اسلام تو پڑھ لیا تھا، اسلام کا کلمہ تو پڑھ لیا تھا، لیکن ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اللہ کے نبی کے، آپ کے اصحاب کے دشمن تھے۔ اس لیے آپ جب دیکھیں گے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھی قتل کرنے کی سازش رچی گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی اسی نے خنجر مار کر کے شہید کر دیا۔ آپ آگے بڑھیے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر کے، آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے، انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ کے اوپر اذیت کے وہ پہاڑ توڑے گئے، آپ نے جس کنویں کو مسلمانوں کے لیے خریدا تھا اسی کنویں کا پانی آپ کے اوپر بند کر دیا تھا، یہی ظالم تھے۔ آپ نے جس مسجد کی جگہ خرید کر کے مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی کو کشادہ کیا تھا، اسی مسجد نبوی کے اندر ان کو سجدہ کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ آپ کو
इंतहाई बेदर्दी से शहीद करने वाले भी यही हैं। आप आगे आइए, हजरत मुआविया हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान गलत फहमी पैदा करके आपस में मुसलमानों के दोनों लश्कर को लड़ाने वाले यही हैं। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुसालहत करनी चाहिए तो इन्होंने ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को, जो इनके लश्कर के कमांडर थे, जिनके लश्कर के सिपाही थे, इब्ने मुलजिम कौन नहीं जानता है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को कभी कोई खुदा बनाता है तो हजरत मुआविया से सुलह करने की बुनियाद पर आपकी तकफीर कर दी जाती है, और इब्ने मुलजिम जैसा दरिंदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद कर देता है। मामला जब आगे बढ़ता है, वो मुसलमानों के खून के प्यासे हर दौर में रहे हैं, मुसलमानों का खून उनको चाहिए था, बगैर खून के उनकी प्यास नहीं बुझने वाली थी, इसलिए उन्होंने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मिलकर उम्मत को दोबारा लड़ाने की कोशिश की। लेकिन हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु इनके चाल और तदबीर को जानते थे, उन्होंने हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह कर लिया। कल जो जिसको हजरत हसन को खलीफा बनाना चाहते थे, इधर हजरत मुआविया से सुलह हुई कि उधर उनको गालियां पड़ने लगी, लानत मलामत किया जाने लगा, और इंतहाई बेदर्दी के साथ आपको भी खाने में जहर मिला करके आपको भी शहीद कर दिया गया। मामला यही नहीं रुकता है, इनके कत्ल और इनके दरिंदगी की दास्तान यहीं पर नहीं रुकती है, बल्कि मामला आगे बढ़ता है। अब ये चाहते हैं, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी बाहयात हैं, उनके दौर में तो कोई सर उठाने की ताकत नहीं रखता, वरना खाल उधेड़ करके रख दिया जाता, इसलिए उन्होंने इंतजार किया हत्ता कि आपकी वफात हो जाती है। जब आपकी वफात होती है, आपके बेटे यजीद खिलाफत के मनसब पर फायज होते हैं, और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु समेत मदीना के जो दूसरे बाशिंदे हैं, उनके पास कासिद आता है कि आप बैत कर लीजिए। मैं अपनी किताब का हवाला नहीं दूंगा, उठाइए खुलासतुल मसाइब, शियों की मोतबर किताब है, मस्दर और मर्जा की हैसियत रखती है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब कासिद आता है कि यजीद की बैत कर लीजिए, हजरत हुसैन का जवाब ये था, कहा कि मैं ऐसा आदमी हूं जिसका छुप करके बैत कर लेना मुनासिब नहीं है, मैं ये चाहता हूं ऐलानिया तौर पर लोगों के दरमियान यजीद के हाथ में अपना हाथ दे दो, ताकि लोगों के सामने मामला पूरा वाज़ेह हो जाए। जाओ मेरे पास बाद में आना। फिर जो कासिद आया हुआ था उसको आने में 1-2 दिन की ताखीर हो जाती है। उसके बाद हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी घर से मदीना मक्का चले जाते हैं। मैं जिन अल्फाज को अपनी जबान से निकाल रहा हूं, मैं जामिन हूं अपने हर बात पर दलील देने का। आप पूछ सकते हैं, वीडियो हो रहा है, बाद में भी आप पूछ सकते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का चले जाते हैं, उधर कूफियों को यह पता चलता है कि आप मदीना से मक्का आ गए हैं, आपके पास खत व किताबत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इतने खत लिखे जाते हैं, इतने खत लिखे जाते हैं, कहने वाले, रिवायत करने वाले, तारीख बयान करने वाले कहते हैं 18,000 तक खुतूत की तादाद पहुंच जाती है, 2 बोरियां भर जाती है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इनको पहचानते थे, इनको जानते थे, लेकिन फिर भी आपने मुस्लिम बिन अकील अपने भाई को आपने वहां भेजा, जाओ हालात का जायजा लेकर के आओ। और उसके बाद जब वहां जाते हैं, आप पूरा मंजर जानते हैं, इनकी किताबों के हवाले हैं 80,000 कूफियों ने आपके हाथ पर वादा किया, बैत किया कि हजरत हुसैन को बुलाइए, हम साथ देंगे। उधर उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे ही कूफा के अंदर दाखिल होते हैं, और बताने वाले, कहने वाले, रिवायत करने वाले बताते हैं कि चंद अफराद के साथ हुआ था। उसके बाद में लड़ाई जब शुरू होती है, आप पूरा वाकया जानते हैं, मैं इख्तिसार से अभी कातिल जो असल मुजरिम मैं वहां आना चाहता हूं। वो अपनी किताब के अंदर खुद लिखते हैं कि जब जंग होती है तो मुस्लिम बिन अकील ने 150 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उबैदुल्लाह बिन जियाद तो चंद सिपाहियों के साथ आया था, ज्यादा से ज्यादा उसकी तादाद 18 से 20 थी, फिर ये 150 लोग आए कहां से मुस्लिम बिन अकील के मुकाबिल में? कौन थे? वही थे जिन्होंने हाथ पर बैत किया था। बहरहाल हजरत मुस्लिम बिन अकील जब खत लिख देते हैं कि आप मत आना, यहाँ के हालात साजगार नहीं है, आपको शहीद कर दिया जाता है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खबर मिलती है, आप वापस भी पलटना चाहते हैं, लेकिन चूंकि जिनके भाई शहीद हुए थे वो बदलना चाहते थे, और हजरत हुसैन साथ छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बुज़दिल की औलाद नहीं थे, वो फातिह खैबर के बेटे थे, अली हैदर के बेटे थे, शेर खुदा के बेटे थे। भला वो अपने वादे से क्यों मुकर सकते थे? लेकिन कादिसिया के मकाम पर जब पहुंचता है आपका काफिला, और कुछ अराबियों की वजह से आपको जब कूफा की पूरी हालत का जायजा होता है, तो आप ये समझ जाते हैं कि हालात को हमने जैसा समझा था उससे भी ज्यादा खराब है। आप अपने सफर का सिलसिला कूफा के बजाय दिमश्क की तरफ मोड़ देते हैं। कौन सा दिमश्क? जहां खिलाफत थी, जहां यजीद की हुक्मरानी थी, जहां दारुल खिलाफा था, वहां जब जाते हैं। लेकिन बहरहाल मामला आगे बढ़ता है, करबला के मैदान में जब पहुंचते हैं, उमर हजरत इब्ने साद के बेटे से मुलाकात होती है। वहां जब आपकी मुलाकात होती है तो उसके बाद में आपको मंजर पता ही होगा, जब वहां बताया
जाता है इन लोगों ने मुझको बुलाया था, खुतूत दे करके बुलाया था, बोरियां निकाल करके दिखाई जाती है। वो ये समझ जाते हैं कि अगर ये खत यजीद के पास पहुंचेगा तो हमारी चमड़ी उधेड़ देगा, हमारी खाले मचवा लेगा। फिर इन्हीं जालिमों ने जिन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया था, अचानक आप पर हमला करते हैं और आपको शहीद कर देते हैं। अब आइए मैं अपने असल मौजू की तरफ लेकर के चलता हूं। सुनो, करबला के मुजरिमों का मैं पता बताता हूं कि मुजरिम कौन है, और इस तकरीर के अंदर मैं शायद अपनी किसी भी एक किताब का हवाला नहीं दूंगा। सबसे पहले आप उठाइए अबू मंसूर अहमद बिन अली बिन अबी तालिब अत-तबरसी, जिसका नाम है, शिया मकतब फिक्र का बहुत बड़ा आलिम है। किताब का नाम अल-इहतिजाज है। हिजाम बिन सुमैर असदी से एक रिवायत नकल करता है, और उसी रिवायत को शिया का एक दूसरा आलिम है, इब्राहिम मयांजी नाम है, किताब का नाम अल-अयूनुल अबरा है, उसमें लिखता है, ये भी शियों का मोतबर आलिम है। कहता है कि लम्मा अता अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम अन्निस्वत मिन करबला व काना मरीदन व इदा निसाउ अहलिल कूफती यशफुन अल-जुयूब वर-रिजालु मअहुन्ना यबकून फक़ाल ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बिसौतिन ज़य्यिलिन व क़द नहकतहु ल-इल्ला इन्न हाउलाई यबकून अलैना फमन क़तलना गैरहुम। ये उनकी इबारत मैंने पढ़ा है। अब आप मतलब समझिए, ये दोनों जो शिया इमाम, शिया के दरमियान मोतबर और पाए दर्जा रखते हैं, बड़े आलिम हैं, कहते हैं जब जंग करबला खत्म हो जाती है, हजरत अली बिन हुसैन जिसको ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जाना जाता है, वो जब वहां से निकल करके आते हैं और देखते हैं कि कूफा की औरतें मातम कर रही हैं, तमाचे मार रही हैं, मर्द गिरेबान फाड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। आप बहुत बीमार थे, बेचैन थे, परेशान है, लरजती हुई आवाज में, कपकपाती हुई आवाज में कहा इन्ना हाउलाई यबकूना फमन क़तलना गैरहुम। लोगों, ये कूफा के लोग हम पर मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं। अगर ये रो रहे हैं तो हमको कत्ल किसने किया है? हमको कत्ल किसने किया है? हजरत अली के बेटे हैं, अहले बैत में से हैं, बेटा बाप के कातिलों का पता बता रहा है। आगे आइए, मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। उसके आगे आपको आइए, वही किताब है अल-अयूनुल अबरा, उठाइए सफा नंबर 222 और 223, और वही किताब उठाइए अल-इहतिजाज जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 28। उसका मुअल्लिफ लिखता है कि हजरत अली बिन हुसैन यानी ज़ैनुल आबिदीन ने कोफियों के सामने खुतबा दिया। कहा अय्युहन नास मन अरफनी फक़द अरफनी व मन लम यअरिफनी फ़अना अली इब्न हुसैन। कूफियों, जान लो, जो मुझे पहचानता है वो मुझे पहचानता है, जो मुझे नहीं जानता वो जान ले मैं हुसैन का बेटा अली हूँ। मैं अरबी इबारत के बजाय सिर्फ उर्दू तर्जुमा पढ़ता हूँ। हजरत अली बिन हुसैन यानी ज़ैनुल आबिदीन ने कूफियों के सामने तकरीर करते हुए कहा, ऐ लोगों, मुझको पहचानता है, और जो नहीं जानता वो जान ले मैं अली का बेटा हुसैन हूँ। फिर कहा, ऐ लोगों, तुम्हें अल्लाह को बर्बाद कर दे, क्या तुम नहीं जानते थे कि तुमने वालिद को खत लिखा था, मेरे बाप को खत लिखा था, फिर उनको धोखा दे दिया, तुमने खुद आदो पैमान किया था, पुख्ता वादा किया था, मदद का यकीन दिलाया था, फिर भी तुमने उनसे जंग किया, उन्हें कत्ल कर डाला। तबाही और बर्बादी हो तुम पर। तुमने अपने नफ्सों के लिए कैसा बुरा अमल आगे भेजा है, तुमने अपने ऊपर कैसी बुरी जिम्मेदारी लाद ली है। तुम अल्लाह के रसूल का सामना कयामत के दिन कैसे करोगे, जब वो तुमसे सवाल करेंगे कि तुमने मेरे अहले बैत को कत्ल कर डाला, तुमने मेरी हुर्मत को पामाल कर डाला। इतना कहना था। रावी बयान करता है, कूफी दहाड़े मार मार करके रोने लगे और आपस में एक दूसरे को बद्दुआएं देने लगे। कौन है ये ज़ैनुल आबिदीन? हजरत हुसैन के बेटे हैं। किसका पता बता रहे हैं? अपने बाप के घर का पता बता रहे हैं। और गजब की बात तो यह है कि कूफियों के भीड़ में से किसी एक ने भी हजरत ज़ैनुल आबिदीन को झुठलाया नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो, हमने कत्ल नहीं किया है। सबको अपने आप को बद्दुआ देना इस बात की वाज़ेह दलील है कि वो भी मानते थे। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। एहतजाज तबरसी में लिखा हुआ है, हजरत हुसैन ने कूफियों की गद्दारी और मक्कारी को देखा। अब अगर मकतूल खुद अपने कातिल का बता दे, जो कत्ल होने वाला है, जिसको अपनी जान का डर है, वो खुद बता दे कि मुझे किससे खौफ है, इससे बड़ी गवाही क्या होगी। हजरत हुसैन ने कहा, ऐ लोगों, तुम पर लानत हो, तुम्हारी दावत पर मैं यहाँ चला आया और तुम तलवार लेकर हमारे ही सर पर खड़े हो गए। हमारे दुश्मनों के बजाय तुमने हम पर ही आग जला दी। तुम्हारे लिए हलाकत और बर्बादी हो। खुदा की कसम, बेवफाई, वादा तोड़ना तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम्हारी जड़ें गद्दारी और धोखे से मिली हुई हैं। तुम्हारी
शाखों ने उसी पर परवरिश पाई है। मुसलमानों गौर करो, कत्ल होने वाले हजरत हुसैन अपने कातिलों का खुद बता रहे हैं। आओ अहले बैत से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों, वो मुसलमानों जो सच में सैयदना हुसैन से मोहब्बत करते हो, तुम्हें पता करना है ना कि करबला के मुजरिम कौन है। आओ मैं आगे लेकर के चलता हूं। उठाओ शियों की दूसरी किताब जिलाउल उयून जिसका नाम है, खोलो सफा नंबर 493। कातिलों के घर का पता सुन लो, कोई और नहीं है, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी है फातिमा सुगरा जिनका नाम है। जब करबला का वाकया रोनुमा होता है, उसके बाद उन्होंने कहा, ऐ कूफा के लोगों, ऐ मक्कारों, ऐ गद्दारों, ऐ दगाबाजों, ऐ दगाबाजों, अल्लाह ने तुम्हारे को हमारे जरिया और हमको तुम्हारे जरिया आजमाना चाहा। तुमने लेकिन हमको झुठलाया, हमारी तकफीर की, हमारा कत्ल किया, हमारे माल को लूटना तुमने जायज समझा। लानत हो तुम पर, रुसवाई का इंतजार करो। गोया कि अजाब इलाही तुम पर आ चुका है, आसमान से अजाब के टुकड़े तुम पर बरस पड़े हैं। कयामत के दिन तुम हमेशा के लिए दर्दनाक अजाब में मुब्तला रहोगे, क्योंकि तुमने हम पर जुल्म किया है। कौन है ये फातिमा? हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन है, हजरत अली का। और इसी तरह से उन्होंने आगे कहा, तबाही और बर्बादी हो तुम पर सब पर। क्या तुम लोगों को एहसास भी है कि तुमने अपने हाथों से क्या किया है? तुमने हमारी जानों को क्यों कत्ल किया? किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया? आखिर तुम हमारे मद्दे मुकाबिल किन कदमों से चल करके आए हो? किस दिल से तुमने हमसे जंग की है? तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं, तुम्हारे जिगर पत्थर के हो चुके हैं, तुम्हारे हाथों पर मोहर लग चुकी है, तुम्हारी समाज पर पर्दा पड़ चुका है। अहले बैत से गवाही मिल रही है, कातिलों के घर का पता मिल रहा है। आइए मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। उबैदुल्लाह बिन जियाद के लश्कर में एक आदमी का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है, शिम्र बिन जिलजोशन जिसका नाम है। कहा जाता है कि इसने कत्ल किया था हजरत हुसैन को। आपको पता करना है कि ये कौन है। अगर तुम इसको मुजरिम मानते हो तो तुमको पता करना है कौन है। आओ उठाओ शियों की एक दूसरी किताब अयान शिया जिसका नाम है, खोलो सफा नंबर 236 को, 226 को। उठाओ अपने मजहब की एक दूसरी किताब जिसका नाम सफीनतुन नजार व मदीनतुल हिक्म वल आसार है, मुअल्लिफ का नाम अब्बास अल क़िन्नी है। उठाओ जिल्द नंबर 2 और सफा नंबर 873 को। इन दोनों किताबों के अंदर सिम्र दिलजोशन के बारे में लिखा है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के शिया में से है। ये उनमें से है जिसने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत अली के लश्कर में मिलकर जंगे जमल और जंगे सिप्पीन लड़ी है। और आज करबला में अली के बेटे का ही खून बहा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी किताबें बता रही है, तुम्हारी किताबें इस बात की गवाह है। जानना चाहते हो कि जिस फौजी दस्ते ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला किया था वो कौन थे? उठाओ शियों की दूसरी किताब मुरूजुज़ ज़हाब लिल मसूदी जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 71 है। मुअल्लिफ लिखता है, वकाना जमीउ मन हदरा मक़तल हुसैन मिन अल असाकिर व हारबहु व तवल्ला क़त्लहु मिन अहलिल कूफा खासतन लम यहदरुहु शामियुन। और एक दूसरी किताब के अंदर भी है, बहारुल अनवार जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 231। और ये इतना बड़ा आलिम है कि अगर तुम इसका इनकार करोगे तुम्हारी बुनियाद ही हिल जाएगी। नाम है मुल्ला बाकर मजलिसी। मुल्ला बाकर मजलिसी, तुम्हारी बुनियाद ही हिल जाएगी अगर तुम इसका इनकार करने के लिए जाओगे। ये कहते हैं, दोनों कहते हैं, वो तमाम लोग जो हजरत हुसैन के मद्दे मुकाबिल आए, जिन्होंने क़िताल में हिस्सा लिया, जिन्होंने हजरत हुसैन पर हमला किया, जिन्होंने आपको कत्ल किया, सबके सब कूफा थे, शामी का कोई एक आदमी नहीं था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जब उगला जाता है कि यजीद से जंग लड़ने जा रहे थे, दीन को बचाने जा रहे थे, इस्लाम बचाने जा रहे थे, शाम का तो कोई आदमी उनको कत्ल करने के लिए नहीं आया। ये गवाही किसके घर गई है? कत्ल भी करते हो, मातम भी करते हो, नौहा भी करते हो। आगे आइए, मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। उठाओ एक किताब और है, मजालिसुल मोमिनीन, काजी नूरुल्लाह शास्त्री तुम्हारा मौलवी है। उठाओ 200 सफा नंबर 41 को। करबला के बाद कूफा के लोग। अब यहां मैं एक और बड़ी गवाही दिलवाना चाहता हूं कि अगर कत्ल करने वाला खुद एतराफ कर ले, कत्ल करने वाला खुद एतराफ कर ले कि हमने कत्ल किया, इससे बड़ी गवाही कुछ होगी? किताब का नाम मैंने बता दिया है। मुअल्लिफ लिखता है कि करबला का वाकया जब खत्म होता है तो कूफा के लोग आपस में मिलकर बैठते हैं, अफसोस और नदामत का इजहार करते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई को हमने मोल ले लिया है। अब हम सबको मिलकर तौबा करने की जरूरत है, और तौबा करने की सूरत वही अपनाना पड़ेगा जो बनु इसराइल वालों ने अपनाया था, हम आपस में एक दूसरे की गर्दन काट दे। इतना कहने के बाद
बाद सब तेज आवाज में रोने लगते हैं और अपने जानों के बर गिर जाते हैं। कत्ल करने वाले खुद एतराफ कर रहे हैं कि हमने कत्ल किसने किया है। आगे आइए, खुलासतुल मसाइब में भी यही लिखा हुआ है, शियों की मोतबर किताब है। आइए, सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बेटी है। किताब का नाम जिलाउल उयून है, शियों की मोतबर किताब है, मस्दर और मर्जा की हैसियत रखती है। वो कहती है वल्लाह वल्लाह लाजिम। आगे पहले मैं एहतजाज तबरीसी की इबारत बता देता हूँ। कहती है कूफियो, ऐ दगाबाजो, ऐ मक्कारो, अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को कभी खुश्क ना करे। तुम पर लाजिम है कि तुम ज्यादा रो, तुम पर लाजिम है कि तुम ज्यादा हंसो। और कायनात के रब की कसम खा करके कहता हूँ, तुम्हारे किताब की बुनियाद पर मैं कहता हूँ, अल्लाह ने सैयदा ज़ैनब की बद्दुआ को कबूल कर लिया। तुम्हारी नस्लों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे उस करतूत की सजा मुसल्लत कर दी है। जब तक तुम इस दुनिया के अंदर रहोगे, जब तक अपना रिश्ता और नाता उनसे जोड़कर रखे रहोगे, तब तक तुम्हारे सीने पिसते रहेंगे, तुम्हारे बदन से खून निकलता रहेगा, तुम्हारे जिस्म लहूलुआन होते रहेंगे, तुम आग पर चलते रहोगे, तुम इस तरह से बिदात और खुराफात करते रहोगे, क्योंकि ये अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारी किताबें गवाह हैं कि सैयदा ज़ैनब ने तुमको बद्दुआ दिया है और उस बद्दुआ के तुम शिकार हो गए हो। वक्त मेरा बिल्कुल खत्म होने वाला है, कुछ बातें और अर्ज करके बहरहाल मेरी गुफ्तगू जो है, अगर मैं यहां भी अपनी बात खत्म कर दूं तो भी मुकम्मल हो जाती है। कातिलों के घर का पता मैंने आपको दे दिया है कि कूफियों ने कत्ल किया है, कोई और जिम्मेदार नहीं है, इन्होंने ही कत्ल किया है। आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं। यजीद को चूंकि गालियां दी जाती है, आप सुनते जाइए। यजीद की बीवी का नाम है उम्मे मोहम्मद। क्या नाम है? बोलिए। उम्मे मोहम्मद। कौन है आपको पता है? अब्दुल्ला बिन जाफर बिन तैयार। अब्दुल्ला जाफर तैयार को जानते हो? जाफर तैयार को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के कौन है? भाई हैं। अब्दुल्ला कौन है? जाफर तैयार के बेटे हैं। इनकी बेटी हैं, यजीद की बीवी हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के ये अब्दुल्ला कौन हुए? चचाजाद भाई हुए, चचाजाद भाई हुए। उम्मे मोहम्मद यजीद की बेटी, यजीद की बीवी, अब्दुल्ला की बेटी, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के चचाजाद भाई की बेटी है। जो लोग यजीद को जानी, शराबी, कराबी, अय्याश, मक्कार कहते हैं, मक्कार जो भी कहते हैं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी गैरत ईमानी इस बात का तकाजा करती है अपनी बेटियों का रिश्ता शराबियों के घर करोगे? अपनी बेटियों का रिश्ता जानियों के घर करोगे? अपनी बेटियों का रिश्ता जुआरियों के घर करोगे? नहीं करोगे। फिर तुमने ये कैसे गवारा कर लिया कि अहले बैत के लोग अपने रिश्ता ऐसे लोगों के साथ करेंगे? मतलब खयानत की गई है, दजल और फरेब से काम लिया गया है। आगे आइए, आगे आइए, मैं आपको बताने चलता हूं। मुझको बताओ, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिनका तज़किरा मैंने अभी आपको किया, जब करबला का वाक़िया रोनुमा हुआ है, उसके बाद वो कहां गई थी पता है आपको? दिमश्क गई थी। दिमश्क में कौन था? यजीद कौन है? सौतेला दामाद हुआ ना। किसके पास पूरी जिंदगी गुजारी? यजीद के घर में गुजारी। आज भी सैयदा ज़ैनब की कब्र दिमश्क के अंदर मौजूद है, वो भी बनु उमैया के कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारा कोई कत्ल कर दे, क्या तुम्हारी बहन तुम्हारे कातिल के घर में रहना पसंद करेगी? नहीं करेगी। फिर सैयदा ज़ैनब से तुम ये बात कैसे बर्दाश्त कर लेते हो कि सैयदा ज़ैनब ने जाकर के अपनी जिंदगी पूरा एक कातिल के घर में गुजार दिया? कैसे गुजार दिया? क्या तुमको उनकी इज्जत, आबरू, उनकी गैरत ईमानी पर शक है? उनको उनके गैरत ईमानी पर शक है? पता चला कातिल वहां नहीं है, कातिल वही काले लिबास में छुपे हुए काले दिल वाले भेड़िए हैं जिन्होंने हजरत हुसैन को खत लिखा, 18,000 खत लिखा, बुलाया, धोखा दिया, गद्दारी किया और आपको करबला के मैदान में तड़पा तड़पा करके शहीद कर दिया। मेरी गुफ्तगू तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन एक बात अर्ज करके मैं अपनी बात को भी खत्म कर दूंगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहुत मशहूर शेर है ना, बहुत फख्र से पढ़ा जाता है ना। इसको कभी सुना, कभी समझा? काबे की रब की कसम, अगर इस शेर पर तुम ईमान ले आओ तो हजरत हुसैन का ईमान मशकूक हो जा रहा है। हजरत हुसैन का ईमान मशकूक हो जा रहा है। अगर तुम ये मानते हो कि हजरत हुसैन जिहाद के लिए गए थे, सहाबा ने हजरत हुसैन को क्यों रोका था? सहाबा जिहाद करने से किसी को रोक सकते हैं? हजरत हुसैन जिहाद करने के लिए गए थे, अपने छोटे छोटे बच्चे और अपनी बीवियों को लेकर के क्यों गए थे? दुश्मनों से जिहाद करने कोई बीवी और बच्चों को लेकर के जाता है? हजरत हुसैन इस्लाम बचाने के लिए गए थे। जब कादिसिया के मौके पर पहुंचे या उससे पहले पहुंचे, आपने पलटने का इरादा कर लिया था। क्या
क्या तुमने हुसैन को बुज़दिल जाना है, तुमने हुसैन को डरपोक जाना है कि दुश्मनों के डर से वो पलटने की बात कर रहे हैं? अगर इस्लाम की आबरू बचाने के लिए हुसैन जाएंगे, मेरा तो ये अकीदा और ईमान है कि करोड़ों का भी लश्कर हो, अली का बेटा अगर तना हो तो भी टकरा जाएगा, खौफ खाने की कोई बात ही नहीं है। हजरत हुसैन वहां खुद पलटने की बात कर रहे हैं और 3 शर्त की बात कर रहे हैं। ये 3 शर्त आप इनकार करके दिखाओ, तुम्हारी 10 किताबों से हवाला देना मेरा काम है, 10 किताबों से हवाला दिखाऊंगा, तुम इनकार करो इन 3 शर्त में से किसी एक का, 10 किताबों का हवाला मैं तुमको दिखाऊंगा, शिया के घर की किताबें। इसीलिए कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ के बोले। 3 शर्त कि मैं जहां से आया हूं मुझे वापस चले जाने दो। क्या जिहाद करने हुसैन जाएंगे, वापस पलटने की बात करेंगे? कहा या तो मुझे इस्लामी सरहद पर लेकर के जाओ जहां कुफ्फार से जंग हो रही हो, मैं लड़ करके शहीद होना चाहता हूं। यजीद की खिलाफत को खिलाफत मान रहे हैं, उसकी सरहद को इस्लामी सरहद मान रहे हैं, भला यजीद से जिहाद करने क्यों जाएंगे? दूसरी शर्त, तीसरी शर्त कि या तो मुझे यजीद के पास लेकर के चलो, मैं अपना हाथ उसके हाथ में दे दूंगा। और 1 हवाले और ऐसे मौजूद हैं जिसमें बाकायदा अमीरुल मोमिनीन उन्होंने कहा है कि मुझे यजीद अमीरुल मोमिनीन के पास लेकर के चलो, मैं अपना हाथ उनके हाथ में दे दूंगा। आप मुझे बताओ, अगर हजरत हुसैन जिहाद करने के लिए जा रहे थे तो आपको नहीं पता कि जब दुश्मन मद्दे मुकाबिल हो, कुफ्र और हक और बातिल सामने हो, तो पीठ फेर कर भागना कुफ्र है? आपको नहीं पता? हजरत हुसैन का ईमान कहां लेकर के चले गए तुम? तो लिहाजा जरूरत इस बात की है कि जज्बात में बहकने के बजाय हकीकत को समझो, दुश्मन और दोस्त के फर्क को समझो। मातम कर लेने से, रो लेने से, पीट लेने से उनकी गलतियां या उनकी खता या उनके जराइम पर पर्दा नहीं पड़ेगा। वो मुजरिम थे, मुजरिम हैं और मुजरिम रहेंगे, और कयामत तक अल्लाह ताला इनको सजा देगा। और कयामत के बाद इन्होंने जो इनके दाग पर, इनके तलवारों से जो हुसैन का खून टपक रहा है, अल्लाह ताला इबरत का निशान इनको भी बनाएगा। मेरा वक्त भी खत्म हो चुका है, बिल्कुल 30 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। मैं अपनी बात भी मुकम्मल करता हूं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन मुझे, आपको, हम सबको जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, असहाब रसूलुल्लाह और अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा वो दिन हम देखें जैसा हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि तुम नासिबी हो, तुम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते हो। ऐ अल्लाह, हम पूरे मजमे के सामने दुआ करते हैं, तेरी इज्जत, तेरी बुजुर्गी और तेरी किबरियाई की कसम खा करके दुआ करते हैं, जिस दिन हमारे दिल के अंदर अहले बैत के लिए नफरत आए, उससे पहले तो हमको मौत दे देना, उससे पहले तो हमको इस दुनिया से उठा लेना। आमीन या रब्बल आलमीन।